Hello everyone, my name is Devang and I welcome you back to this another video. So यार इस वीडियो में ना हम लोग थोड़े क्वेश्चंस देख रहे होंगे रिकर्शन के। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि रिकर्शन क्या होता है। ठीक है, और हमने बात किया था कि रिकर्शन कैसे काम करता है। हमने डिस्कस किया था एक प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, और हमने क्या डिस्कस किया था, हमने डिसाइड किया था कि किस तरीके से हम किसी क्वेश्चन को लिख सकते हैं। तो बेसिकली हमने देखा था कि रिकर्शन को, जो हम कोई भी क्वेश्चन है ना रिकर्शन का, उसको लिखने के बेसिकली दो तरीकों से हमको लिखना होता है। सबसे पहला तरीका क्या होता है कि हमको जो है उसका कोड को लिखना पड़ता है, मतलब कोड को सिंपली लिख देना है। हमको सोचना है नहीं कैसे काम कर रहा है। ये हमारा इसमें हमारा फेथ यूज़ होगा। एक तो हमारा इसमें फेथ यूज़ होगा और एक इसके अंदर हमारी स्मॉल कैलकुलेशन यूज़ होगी और इसके थ्रू हमको जो है सारा कुछ सोच देना है। ठीक है, और दूसरी चीज़ हमने देखी थी कि एक होता है हमारा एनालिसिस स्टेप, और इस स्टेप के अंदर हम उस कोड को ड्राइव इन करके देखते हैं। और अगर हमने इस केस में पर्टिकुलरली अगर नहीं लिखा हमने बेस केस, वैसे तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इसी के अंदर जो है बेस केस लिख देते हैं, प्रैक्टिस के साथ इसी केस के अंदर बेस केस लिखा जाता है। बट अगर नहीं लिखा तो हम इस केस के अंदर हमने बेस केस की तरफ भी ध्यान देते हैं। ठीक है, तो लेट्स dive into the questions. Before diving into the questions, let's discuss about this course, like why this course was possible. This course was only possible due to the Launchpad initiative, which is taken up by Newton School. तो यार लॉन्चपैड क्या है? लॉन्चपैड इज इनिशिएटिव विच इज टेकन अप बाय न्यूटन स्कूल, एज आई सेड अर्लियर. सो इन दिस यू आर गेटिंग free courses, and if you do this particular course by going to the newtonschool.com/notepad section, and you will get a course like certificate of completion, and you will also get doubt support there, and you will also get all the exercises and question of this particular course will be available there. Okay, now what is Newton School? Okay, what is Newton School? So Newton School is basically a platform from where you can learn anything for free until you are placed. Okay. Now they have a tie-up with among 300 plus top-notch companies, from where you can get a assured placement of around 5 lakh to 40 lakh CTC. Okay, and you are getting educated by top educators from IITs and NITs. So make sure that you go to the Newton School site and check out their courses. Now let's discuss the first question of our video. The first question will be factorial of a number. So if you know about factorial of a number, it's very good, but if you do not know about number, let me explain it to you. So basically factorial is defined as n factorial is equals to 1 into 2 into 3 into 4 up to n. Okay, example 5 factorial is equals to 1 into 2 into 3 into 4 into 5, and 1 factorial is equals to 1 and 0 factorial is equals to 1. This is our particular case, 0 factorial is equals to 1. So this is the factorial of a number. Now we want to calculate this with help of recursion. Because if we apply recursion, it will be some 2 to 3 lines of code, and we want to make sure that we are understanding the part of the recursion as well. So this question can also be done with the help of a loop. Like अगर हम for loop use करते हैं, for int I is equals to 1, okay, और I is less than equals to n, और I plus plus अगर हम करते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग आंसर ले लेते हैं, int answer is equals to 1, और हम कर देते हैं answer is equals to answer into I. ये वाला कोड तो बिल्कुल चलेगा ही चलेगा, ठीक है ना. और यहाँ पे हम कर देते हैं रिटर्न आंसर, ये वाला कोड भी चलेगा. बट इसके अंदर क्या हम लोग रिकर्शन नहीं यूज़ कर रहे. बेसिकली रिकर्शन का कंसेप्ट भी कहीं ना कहीं लूप के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है. अगर हम देखें, सोचे ध्यान से, तो रिकर्शन भी बेसिकली लूप का कहीं ना कहीं कंसेप्ट यूज़ कर लेता है. तो बेसिकली हम इसी चीज़ को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे रिकर्शन में. ठीक है, अब देखते हैं रिकर्शन का कैसे जो है सिस्टम वर्क करता है. मान लो कि हमारे पास हमने फैक्टोरियल ऑफ एन फाइंड करना है, किसी भी नंबर का फैन. मान लो तो कि मेरे पास यार एक फंक्शन है, एक मिनट मैं लिखता हूँ. जैसे मान लो मेरे पास फंक्शन है void फैक्ट, और हमें को एक इंटीजर गिवन होगा इंट एन, और हमको जो है यहाँ पे रिटर्न करना है उसका आंसर जो भी आता है, उसका फैक्टोरियल जो भी आता है.
तो जैसे मैंने बताया था कि यार हम भी कभी भी अगर रिकर्शन करते हैं तो उसके अंदर हम लोग दो चीज़ों का ध्यान रखते हैं। एक अपना हम ध्यान रखते हैं बिलीफ का, कि हमारा इस क्वेश्चन को पढ़ने का पर्टिकुलर बिलीफ क्या होगा। दूसरा हमारा अपना काम क्या होगा, आवर वर्क क्या होगा। या अगर मैं और थोड़ा सिंप्लीफाई लैंग्वेज में बोलूँ तो हम लोग किस चीज़ का ध्यान रखेंगे, सबसे पहले हम लोग ध्यान रखेंगे बेस केस का, कि हमारे इस क्वेश्चन के अंदर बेस केस क्या होना चाहिए। दूसरा हम लोग ध्यान रखेंगे हमारे वर्क का, यानी कि आवर वर्क। तीसरा हम लोग ध्यान करेंगे रिकर्सिव वर्क का, रिकर्सिव वर्क का। अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर तुम रिकर्शन के ये बेसिकली तीन चीज़ें फॉलो कर लेते हो तो हमारा वो क्वेश्चन पर्टिकुलर हो जाएगा। अब इस केस के अंदर ध्यान देते हैं कि हमारी पहले एक डेफिनेशन क्या है, कि इस क्वेश्चन की डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन क्या है कि ये फंक्शन क्या करेगा कि मेरे को फैक्टोरियल आके दे देगा। मेरा ये बिलीफ है, मेरा ये मानना है कि जो ये मेरा फंक्शन है ये मेरे को फैक्टोरियल आके दे देगा, ये मेरा मानना है, ठीक है। अब पहले बेस केस की तरफ हम बाद में जाएंगे, पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारा अपना काम क्या होगा, व्हाट विल बी आवर वर्क। अच्छा, ठीक है। तुमने कहा था कि n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। क्या मैं इसी को ऐसे लिख सकता हूँ n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल? क्या मैं लिख सकता हूँ? ज़रा सोच के देखो एक बारी, क्या मैं लिख सकता हूँ ये? जैसे मैंने कहा मैं कह रहा हूँ कि 5 फैक्टोरियल को लिखो तुम लोग 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। अच्छा, अब देखो 4 फैक्टोरियल क्या होगा, 4 फैक्टोरियल क्या होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। बेसिकली मैंने इसको उल्टा करके लिख दिया, मैंने लिखा था ना 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, इसको मैंने ऐसे लिखा था, मैंने इसको उल्टा करके लिख दिया क्योंकि ऑफकोर्स ही बात है ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू बी होता है ना, तो मैंने उल्टा करके लिख दिया। अब 4 इंटू 3 12 है, 12 इंटू 2 24 है, 24 इंटू 1 24 है। तो मैं कह रहा हूँ 5 फैक्टोरियल क्या होगा, 5 इंटू 24 ये होगा, यानी कि 120। बेसिकली क्या हो जाएगा, 5 4 20 एंड 120, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हो इतनी चीज़ को? अब अगर तुम ये वाली प्रॉपर्टी समझ पा रहे हो कि n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो और एक चीज़ समझने की कोशिश करना कि क्या मैं इसको इसी चीज़ को रिकर्सिवली लिख सकता हूँ, क्या मैं इसी चीज़ को रिकर्सिवली लिख सकता हूँ? इस चीज़ को सोचने की कोशिश करते हैं। रिकर्सिवली क्या होता है, मैंने तुमको पहले भी बताया था कि रिकर्शन में हम लोग सोचते हैं कि यार हमारा काम कम हो, वर्क हमारा जो वर्क हो हमारा वो कम हो। तो मैं अगर किसी तरह से ये सोचूं कि मेरे पास जो नंबर आया n, मेरे को सिर्फ उसी से लेना देना है n, और क्योंकि मेरा बिलीफ है कि जो मेरा फंक्शन मेरे को फैक्टोरियल ला के देता है किसी भी नंबर का, तो यार वो मेरे को फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1 भी तो ला के दे देगा। मेरा तो बिलीफ है, ये मेरा तो मानना है कि यार मेरे को जो मेरा फंक्शन है फैक्टोरियल आके देता है n का, तो मेरे को वो n माइनस 1 का भी फैक्टोरियल आके देगा। अब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि n फैक्टोरियल इक्वल टू n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो बेसिकली इसी को मैं रिटर्न कर दूंगा। तो मेरा काम तो हो गया। रिकर्शन काम अपना खुद संभालता है, रिकर्शन का काम मेरे को नहीं देखना, रिकर्शन अपना काम खुद संभाल लेता है। मेरा काम भी हो गया और रिकर्शन का काम भी हो गया, ठीक है। अब मेरे को इसको संभालना है, बेस केस को। देखो मैंने बताया था रिकर्शन के 2 स्टेप्स होते हैं। एक केस होता है तुम्हारा अपना काम करना, यानी कि योर कोड फेस, और दूसरा फेज होता है तुम्हारा एनालिसिस फेज। दूसरा फेज होता है तुम्हारा एनालिसिस फेज। एनालिसिस फेज कब करते हैं, जब हम कोड फेज को कंप्लीट करते हैं। तो पहले हम कोड फेज को कंप्लीट कर लेते हैं, फंक्शन लिख लेते हैं अच्छे से, वॉइड फैक्टोरियल इंट n, और यहाँ पे हम कुछ लिखेंगे, कोई बेस केस यहाँ पे आएगा। अभी हमारा बेस केस हमारे नहीं लिखा है बट आएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूंगा, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न n इंटू फैक्ट n माइनस 1। इसको मैं कहीं पे होल्ड पे भी कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पे आउटपुट करा लूँ या आंसर के अंदर स्टोर करा लूँ, बट बेसिकली अब उसमें मैं नहीं जा रहा, मैं अभी बता रहा हूँ कि किस तरीके से ये फंक्शन काम कर रहा होगा। अच्छा, अब ना एक चीज़ समझना कि अगर कोई भी कोड होता है, जैसे अगर C++ का कोड है तो वो मेन से शुरू होता है, यहाँ पे हम लिखते हैं ना इंट मेन, तो वहाँ से शुरू होता है, उसका मेन पॉइंट वो होता है, ठीक है। फिर जैसे जैसे कोई फंक्शन कॉल आई है तो एक स्टैक होता है उसके अंदर, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि स्टैक के अंदर फंक्शन कॉल्स होल्ड होती हैं, स्टैक के अंदर फंक्शन कॉल्स होल्ड होती हैं। तो अगर इसने फैक्टोरियल को कॉल किया है, जैसे इसने फैक्टोरियल को कॉल किया, तो वो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा और इसको कॉल कर लेगा, फिर यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, इसको कॉल कर लेगा, ऐसे चलेगा। अब मान लो फैक्टोरियल 5 कॉल किया हमने, फैक्टोरियल 5 कॉल किया है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं n की वैल्यू 5 है, ठीक है। किसको कॉल कर रहा होगा ये, फैक्टोरियल 4 को इसने कॉल कर दिया। n की वैल्यू 4 हुई, फैक्टोरियल n माइनस 1 को कॉल किया, n की वैल्यू 4 हुई, इसने कॉल किया फैक्टोरियल 1 को,
सॉरी फैक्टोरियल 3 को, क्योंकि 4 - 1 = 3। फिर हमारी n की वैल्यू 3 हुई, इसने कॉल किया फैक्टोरियल 2 को। फिर n की वैल्यू 2 हुई, इसने कॉल किया फैक्टोरियल 1 को। ठीक है, फिर n की वैल्यू 1 हुई, इसने कॉल किया फैक्टोरियल 0 को। फिर n की वैल्यू 0 हुई, इसने कॉल किया फैक्टोरियल 0 को। ठीक है, फिर n की वैल्यू जो है -1 हुई, इसने कॉल किया फैक्टोरियल -2 को। अब एक चीज़ समझने वाली बात है, यहाँ से ना इस पार्ट से वो चलता रहेगा और ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा, मतलब कि इन्फाइनेटली रन करता रहेगा। तुम्हारी स्पेस खत्म हो जाएगी ये सारी, तुम्हारा कंप्यूटर का जो क्रैश कर जाएगा प्रोग्राम, ये रुकेगा नहीं कहीं पे भी। तो इसको कहीं रोकना पड़ेगा, एक हमारे को यहाँ पे स्टॉपिंग पॉइंट चाहिए। ये हमारे को स्टॉपिंग पॉइंट चाहिए, जिसको हम लोग बेस केस भी बोलते हैं, रिकर्शन का बेस केस। ठीक है, तो सोचते हैं कि कैसे, कहाँ से हम लोग स्टॉपिंग पॉइंट इसको ढूंढ पाएंगे। तुमको ये चीज़ दिख रही है कि अगर फैक्टोरियल, तुमको एक चीज़ तुमको पता है, तुमको और कुछ नहीं पता, तुमको इतना पता है कि फैक्टोरियल ऑफ 0 = 1, ये तुमको पता है, तुमको और कुछ नहीं पता। तुमने कहा कि मैंने और कुछ याद भी नहीं करना, मेरे को इतना ज़रूर पता है कि फैक्टोरियल ऑफ 0 = 1 होता है। बढ़िया, अगर ये पता है तो मैं कह सकता हूँ कि यार जब तुम ये रीच कर जाओ ना, जब तुम फैक्टोरियल ऑफ 0 रीच कर जाओ, तो वहाँ से ना उसको 1 रिटर्न कर देना, उसको 1 रिटर्न कर देना, 1 रिटर्न कर देना। बस इतनी चीज़ तुमको याद रखनी है कि हमने उसको 1 रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे रुका हुआ था, वो इस पॉइंट पे रुका हुआ था। अब वो यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेगा, 1 × 1, यहाँ से रिटर्न होगा 1। अब ये कैलकुलेट क्या करेगा, 2 × 1, यहाँ से रिजल्ट होगा 2 जो है वापस जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो रुक जाता है ना, मैंने बताया था यहाँ पे रुक जाता है। उसको बोलता है कि मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ, तो ये काम करके ले आ, बाकी काम फिर मैं करूँगा। अब ये 2 गया, ठीक है। अब इसने देखा कि यहाँ पे 3 था, तो इसने 2 × 3 किया, इसने 6 को रिटर्न किया। यहाँ पे क्या था, 6 × 4, यहाँ पे 24 रिटर्न हुआ। ठीक है, यहाँ पे क्या था, 5 × 24, जो हमारे मेन फंक्शन को 120 रिटर्न हो गया। तो इस तरीके से बेसिकली ये हमारा फंक्शन कॉल को होल्ड करता है और आगे आगे बढ़ता रहता है। तो यार ये बेसिक क्वेश्चन था फैक्टोरियल ऑफ n-1। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर ना एक चीज़ समझने वाली और ये है कि हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली प्रॉब्लम को डिवाइड कर रहे हैं। मैं अच्छे से लिख देता हूँ, हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम किसी प्रॉब्लम को डिवाइड कर रहे हैं। वी आर डिवाइडिंग आवर प्रॉब्लम कि 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, एक पार्ट अपना है, एक पार्ट हमारा है, एक पार्ट रिकर्शन का है, और हम इन दोनों को कंबाइन करके अपना सोल्यूशन देते हैं। इन दोनों को कंबाइन करके अपना जो है सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली ये जो टेक्निक होती है ना, इस टेक्निक को बोलते हैं हम लोग डिवाइड एंड कॉन्कर। डिवाइड एंड कॉन्कर, डिवाइड एंड कॉन्कर का मतलब है कि मतलब बेसिकली रिकर्शन डिवाइड एंड कॉन्कर का क्या मतलब होता है, डिवाइड एंड कॉन्कर का मतलब होता है कि किसी भी प्रॉब्लम को, जो कि तुम्हारी प्रॉब्लम है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो। जैसे छोटा पार्ट लेट्स से सब प्रॉब्लम 1, सब प्रॉब्लम 2, सब प्रॉब्लम 3, ऐसे मान लो छोटे छोटे पार्ट्स में तुमने डिवाइड कर दिया, वहाँ तक डिवाइड कर दिया जहाँ के उसके बाद वो डिवाइड हो ही नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद जब तुमने इन सारी प्रॉब्लम्स को डिवाइड कर दिया, तो इनको जोड़ के जो है एक सोल्यूशन निकाल लो तगड़ा सा, जो तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होगा। दिस इज नॉट डिवाइड एंड कॉन्कर। और मैक्सिमम टाइम्स हमारे रिकर्शन में यही कर रहे होते हैं। मैक्सिमम टाइम हम रिकर्शन में किसी प्रॉब्लम को हम लोग ब्रेक करते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको हम ब्रेक करते हैं, और उसके जो मिनी सोल्यूशन होता है, जो उसका छोटा सोल्यूशन होता है, उससे जो है हमारे प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये चीज़ हमको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे ये चीज़ तो समझ में लग गई। अब एक और चीज़ डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में पर्टिकुलर, उसमें हम डिस्कस करेंगे 2-3 क्वेश्चंस जो कि एरे के ऊपर बेस्ड होंगे। हम लोग एरे के ऊपर कोशिश करेंगे रिकर्शन को अप्लाई करने की। देन हम लोग एक स्ट्रिंग का क्वेश्चन देखेंगे, जिसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है रिकर्शन, उसी मतलब वो पर्टिकुलर क्वेश्चन पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो हम एक वो क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग डे से। तो अगर तुमको कोई भी डाउट हो ना, तो मेक श्योर टू कमेंट आउट दैट डाउट। कमेंट सेक्शन में उसको जो है डाउट को एक बारी जो है पोस्ट जरूर कर देना। सो आई विल मेक श्योर तुम्हारा डाउट क्लियर है। एंड हाँ, अगर तुमको इस पर्टिकुलर कोर्स के कोई भी क्वेश्चन चाहिए या कोई भी असाइनमेंट्स चाहिए, बिकॉज हम लोग बेसिक पार्ट ऑफ डीएसए कर रहे हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, डीएसए के जो है बेसिक पार्ट्स को कवर कर रहे हैं, थोड़े थोड़े क्वेश्चन कर रहे हैं। बट वी शुड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि डीएसए के लिए हमको काफ़ी सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो काफ़ी सारी साइट्स हैं, जैसे लीड कोड हो गया तुम्हारा, और तुम्हारा एक GFG हो गया, ठीक है, और एक हैकर रैंक हो गया। ये बेसिकली जो है तुम यहाँ पे जाके सॉल्व भी कर सकते हो प्रॉब्लम्स को। तो मेक श्योर कि वहाँ पे जो लॉन्च पैड सेक्शन है तुम वहाँ पे जाओ, वहाँ पे तुमको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, असाइनमेंट भी मिल जाएंगी, और साथ ही साथ तुमको डाउट सपोर्ट भी मिलती है। ठीक है, तो मेक श्योर तुम जाओ वहाँ पे, और अगर तुमको और भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर दो। ठीक है,
So bye, keep practicing DSA.